Good afternoon, dear students. This is Harish Gangwar, and today onwards, your remaining part in class 10th is going to be completed. And you already know that in Merchant of Venice, we have studied up to Act 3rd and Scene 1st, and remaining part will be covered in 10th class. So, today I am beginning the explanation of Act 3rd and Scene 2 of Merchant of Venice. So, dear students, please take your copy and pen and note down the important informations, details, etc. Dear students, I have already given you the summary of Act 3rd and Scene 2. So, before watching the explanation, you are supposed to read and understand the summary of Act 3rd and Scene 2. And here I am beginning the explanation of Act 3rd and Scene 2. In brief, I would like to tell you that in Act 3rd and Scene 2, Bassanio is going to make his choice of caskets. And before Bassanio, there were two suitors who had already made their choice of choosing the caskets. When Prince of Morocco chose the golden casket and the Prince of Aragon chose the silver casket, and both of them went from Belmont empty handed because they did not consider the lead casket important and valuable. And in this present scene, when Bassanio is going to make his choice of caskets, Portia wants to stay him for some time. So, in this first scene, first speech is of Portia, and Portia says to Bassanio, I pray you tarry. Tarry means wait. Pause a day or two before you hazard, for in choosing wrong, I lose your company. What does Portia say? Portia says that I pray you, मैं तुमसे pray करती हूँ, request करती हूँ that you should wait for some time, for a day or two, before you hazard. Hazard means यानी अपना लक ट्राई करने से पहले, अपना कुछ भी रिस्क पर लगाने से पहले कुछ दिनों के लिए और वेट कर लो. And why does Portia want him to stay for some days? She gives the reason here. She gives the reason. And what's the reason? For in choosing wrong, I lose your company. What does she say? कि अगर तुम रॉन्ग कैस्केट को चूज करोगे, बाय मिस्टेक अगर रॉन्ग कैस्केट ही सिलेक्ट हो, तो मैं तुम्हारी कंपनी खो दूंगी. दैट शी विल नॉट बी एबल टू स्टे विद हिम फॉर सम डेज. और अगर वह कुछ दिन बाद अपना लक ट्राई करे और भले ही बाद में उसका लक उसका साथ दे या ना दे, तो कम से कम उतने दिन वो उसके साथ और बिता पाएगी. And therefore she requests, therefore forbear a while. Forbear a while means wait for some time. अभी आप कैस्केट का सिलेक्शन पोस्टपोन कर दें, वो ये चाहती है. And again she gives some reasons. There's something tells me, but it is not love. Portia wants to say indirectly. She does not want to say directly that I love you, etc. or I like you. वो ये सब कुछ नहीं बोलना चाहती है, बट इन एन इनडायरेक्ट मैनर शी वॉन्ट्स टू से कि ऐसा कुछ फील होता है, लेकिन ये लव नहीं है. जो बताता है, क्या बताता है? आई वुड नॉट लूज यू, कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ. वो कहती है कि कुछ
ऐसे आइडियाज़ या कुछ ऐसा गैस लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। एंड यू नो योर सेल्फ, हेट काउंसिल्स not in such a quality. First of all, she says that there's something tells me but it is not love, यानी कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे इंडिकेट कर रही है, मुझे बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लव नहीं है। लेकिन बाद में वो क्या कहती है, वो कहती है कि हेड काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी, कि हेट इस तरह से कभी भी एडवाइज नहीं करती है। अगर हेट इस तरह से एडवाइज नहीं करती तो कहीं ना कहीं हेट का अपोजिट जो लव है या उसकी कुछ फीलिंग्स हैं वो एडवाइस कर रही हैं उसको कि वो बेसनियों को कुछ समय के लिए रोक दे। बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, एंड अगेन शी सेज बेसनियो, वो कहती है कि बेसनियो शायद ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हो। वो डायरेक्टली नहीं कहना चाहती कि आई लाइक यू और एनी अदर काइंड ऑफ फीलिंग, बट शी वॉन्ट्स टू से दैट कि तुम्हें मुझे समझना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हैं। एंड yet अ maiden hath no tongue but thought, and what does he wants to say, Portia wants to say, and yet a maiden hath no tongue but thought, कि कोई भी मैडन यानी कोई भी यंग गर्ल है तो वो अपनी टंग से कभी कोई बात नहीं एक्सप्रेस करती, वो डायरेक्टली अपने मुंह से ज़ुबान से उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करती, बट थॉट, उसके अंदर सिर्फ थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स को किसी और वे में एक्सप्रेस करती है। और वो कहती है कि क्या थॉट है, आई वुड डिटेन यू हेयर सम मंथ और टू बिफोर यू वेंचर फॉर मी। क्या कहती है कि मेरे अंदर ये थॉट है कि मैं डायरेक्टली अपनी ज़ुबान से नहीं कह पा रही हूँ कि मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए, शायद 1 या 2 महीने के लिए तुम्हें रोक लूँ, जिससे पहले कि तुम मेरे लिए अपना कुछ दाव पर लगाओ। यानी कैस्केट को चूज़ करने से पहले मैं तुम्हें 1 या 2 मंथ और रोकना चाहती हूँ। एंड नाउ पोर्शिया एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स। यहाँ पर सारी बातें बता देना चाहती है कि बातों बातों में डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट मैनर में नहीं, इनडायरेक्ट मैनर में, कि कहीं ना कहीं पोर्शिया इनडायरेक्ट मैनर में उसे बताना चाहती है कि मैं बहुत लाइक करती हूँ। तो यहाँ पर यह भी कहती है आई कुड टीच यू हाउ टू चूज़ राइट, कि काश ऐसा हो सकता कि मैं तुम्हें ये चीज़ टीच कर सकती, बता सकती कि राइट कैस्केट को कैसे चूज़ करना है। बिकॉज पोर्शिया नोज एवरीथिंग, पोर्शिया को सब कुछ मालूम है कौन से कैस्केट में क्या है। बट आई एम देन फॉरस्worn, क्या कहती है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं एक कसम और एक वादा तोड़ दूँगी जो उसने अपने पिता को दिया हुआ था। उसके पिता ने जो भी अपनी विल में लिखा हुआ था कि सिर्फ सही कैस्केट को चूज़ करने वाला ही पोर्शिया से शादी करेगा। सो विल आई नेवर बी, तो कहती कि मैं वो नहीं बनना चाहती, मैं ऐसा कभी भी नहीं बनना चाहती कि जिसने अपने पिता की विल को तोड़ दिया हो, मैं ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती। सो मे यू मिस मी, तो क्या कहती है कि तुम मुझे मिस कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं तुम मुझे खो सकते हो, और इस चीज़ को भी तुम मिस करोगे कि मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं बता सकती कि कौन से कैस्केट में क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट ही सेज बट इफ़ यू डू what you do, if you wish me to tell you the secret of the caskets, you will make me wish a sin। क्या कहती है कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कैस्केट्स का सीक्रेट तुम्हें बता दूं तो तुम मुझसे एक सिन करवाओगे, यानी ये मेरे लिए एक पाप होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं।
दैट आई हैड बीन forsworn, कि मैंने किसी कसम को तोड़ दिया, यानी एक कसम तोड़ने का पाप, एक कसम तोड़ने का कलंक मेरे माथे पर लग जाएगा। फिर उसके अंदर ये फीलिंग्स क्यों आई? वाई डज शी हैव दिस फीलिंग्स एंड वाई डज शी स्पीक एट दिस वेरी मोमेंट? एंड शी सेज, बिश्रू योर आईज। बिश्रू योर आईज मीन्स योर आईज हैव फैसिनेटेड मी। वो कहती है कि तुम्हारी आईज ने मुझे बिल्कुल फैसिनेट कर लिया है, बिल्कुल अपने वश में कर लिया है। दे हैव ओवरलुक्ड मी एंड डिवाइडेड मी, कि जब भी तुम्हारी आईज मेरी तरफ होती हैं, बार बार देखती हैं, उन नज़रों ने मुझे डिवाइड कर दिया है, आधा आधा बांट दिया है। वन हाफ ऑफ मी इज योर्स, द अदर हाफ योर्स। क्या जो हाफ पार्ट है, जो आधा भाग है, वो भी तुम्हारा है, और जो दूसरा भाग है वो भी तुम्हारा है, यानी पूरी तरह से मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ अपने मन से। माइन ओन आई वुड से, क्या कहती कि आधा जो पार्ट है वो तो तुम्हारा है ही, द अदर हाफ ऑफ योर्स माइन ओन आई वुड से, यानी ये पार्ट वैसनियों का हो गया, और कहती कि ये दूसरा पार्ट है वो मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। इसलिए बट इफ़ माइन देन योर्स, जब मेरा है तो तुम्हारा ही है, यानी कंप्लीटली वो घुमा फिरा कर बात को यही कहना चाहती है कि जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही है, इसलिए पूरी तरह से मैं तुम्हारे वश में हो गई हूँ। एंड अगेन शी सेज, एंड सो ऑल योर्स, कि इसलिए पूरी तरह से तुम्हारी। ओ दीज नॉटी टाइम्स पुट बार्स बिटवीन द ओनर्स एंड their rights. Portia says that the naughty times means the bad times, the unlucky times. They put bars between the owners and their rights. Bars means a foundation. बीच में एक बाउंड्री लगा देना ओनर्स और उनके राइट्स के बीच में। एंड हेयर पोर्शिया considers Bassanio as her owner, and she says that Bassanio has every right over Portia. बेसेनियो का अपना मालिक मानते हुए कहती है कि उनका सब कुछ राइट है मेरे ऊपर, लेकिन टाइम की वजह से, टाइम की पाबंदी की वजह से हम दोनों के बीच में बार्स लगे हुए हैं, बाउंडेशंस लगी हुई हैं। एंड सो दो योर्स नॉट योर्स, इसलिए कहती है कि तुम्हारी होते हुए भी, अपने पूरे मन से तुम्हारी होते हुए भी मैं तुम्हारी नहीं हूँ। बिकॉज ऑफ हर फादर्स विल, वो अपने मन से, अपनी इच्छा से बेसेनियो से ही शादी करना चाहती है, बट उसके फादर के विल के अकॉर्डिंग वो शादी तभी कर पाएगी जब बेसेनियो राइट कैस्केट को चूज कर लेगा। प्रूव इट सो, लेट फॉर्च्यून गो टू हेल फॉर इट, नॉट आई। क्या कहती है कि अगर ऐसा प्रूव होता है तो इन सब बातों के लिए फॉर्च्यून, जो किस्मत है, चाहे गुड लक कह लो या बैड लक कह लो, वही इन सब के लिए जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आई स्पीक टू लॉन्ग बट टिज टू पीस द टाइम। अगेन शी सेज कि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ, मैं सिर्फ बोलती रहती हूँ, लेकिन ये सब कुछ टाइम को पीस करने के लिए है, यानी टाइम को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए है। टू एक इट एंड टू ड्रॉ इट आउट इन लेंथ, जैसे कि मैं टाइम को क्या कर सकें, पोस्टपोन कर सकें, टाइम थोड़ा और आगे चला जाए, और यानी टाइम को खींचते ही चले जाएं, जिससे कि जो कैस्केट का सिलेक्शन है वो अभी ना होकर कुछ समय बाद हो, जिससे अगर बेसेनियो हार भी जाए तो कम से कम कुछ समय उसे पोर्शिया के साथ स्पेंड करने को मिलेगा। एंड शी सेज टू स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन,
कहते हैं कि मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि टाइम बढ़ता चला जाए और कैस्केट का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाए. एंड हियर दिस इज अ वर्ड election, and another word is selection. Election and selection. But in the class also I had told you that these two words have different meaning. What is the election? जैसे इलेक्शंस होते हैं, पीएम के इलेक्शन, सीएम के इलेक्शंस, एमएलएज, एमएलसीज एंड एमपीज, इन सभी के इलेक्शंस होते हैं. सो what happens in the elections? Election is occurred when so many people choose one person. बहुत सारे लोग मिलकर जब किसी एक इंसान को, किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन. बट एक इंसान बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करता है, दैट इज सिलेक्शन. यहाँ पर इन्होंने इलेक्शन क्यों कहा है? बिकॉज there were three caskets. How many caskets? There were three caskets: gold, silver and lead. यहाँ पर तीन कैस्केट्स हुए, 1 2 3. ये तीनों मिलकर एक सूटर को चूज करेंगे, एक सूटर को चूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर इसको इलेक्शन नेम दिया गया है. इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर. नेक्स्ट, बट इतना सब कुछ समझाने के बाद पोर्शिया ने बहुत कोशिश की कि बेसेनियो अभी अपना लक ट्राई ना करें. बट बेसेनियो उस डाउट को, मन में जो एक दुविधा चल रही थी कि जब एक चीज़ में संशय होता है कि ऐसा करें ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो लोग कहते हैं चलो कर ही लेते हैं, जो भी रिजल्ट हो. तो बेसेनियो भी यही सोचता है और कहता है लेट मी चूज, फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक. बेसेनियो क्या कहता है कि मुझे चूज करने ही दो, आज मैं कैस्केट को सिलेक्ट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि जहां मैं हूं आज, मैं रैक पर हूं, रैक पर लेटा हुआ हूं. एंड व्हाट इज रैक? In the law of Venice, when a criminal was arrested and he was condemned to death or any other kind of punishment, he was put upon a rack. Like this, he was put upon a rack and he lay down on this and he was punished on the rack. और वहाँ उस क्रिमिनल को टॉर्चर किया जाता था रैक पर लिटाकर, कि वो अपना जुर्म कबूल करे, उसको एक्सेप्ट कर ले. और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता था तब तक उसे टॉर्चर किया जाता था. तो बेसेनियो क्या कहता है कि मैं रैक पर लेटा हुआ हूँ और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है. एंड हु वाज द पर्सन दैट टॉर्चरिंग? नथिंग बट द मिसट्रस्ट. वो डर, ये डर कि वो कहीं पोर्शिया को खो ना दे, उसकी वजह से वो कहता है कि मैं रैक पर हूँ और मैं टॉर्चर हो रहा हूँ. तो पोर्शिया इज सरप्राइज्ड एंड शी सेज अपॉन द रैक बेसेनियो. कहती बेसेनियो तुम रैक पर हो, तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा है. देन कन्फेस व्हाट ट्रीजन देयर इज मिंगल्ड विद योर लव. क्या कहती है कि अगर तुम रैक पर हो तो कन्फेस करो, इस चीज़ को एडमिट करो कि ऐसा कौन सा ट्रीजन है, ऐसा कौन सा क्राइम तुमने किया है जो तुम्हारे लब में मिला हुआ है, जो तुम्हारे प्यार में एक तरह का क्राइम भी मिला हुआ है, ऐसा क्या है? एंड बेसेनियो रिप्लाइज none but that ugly treason of mistrust.
क्या कहता है, कुछ भी नहीं, बस जो मिसट्रस्ट है वो अगली ट्रीजन है, एक ऐसा अगली क्राइम है जो मिसट्रस्ट की वजह से हुआ है। कौन सा मिसट्रस्ट, कि आगे चलकर क्या होगा। विच मेक्स मी फियर द एंजॉइंग ऑफ माई लव। क्या कहता है कि ऐसा डर, उस मिसट्रस्ट की वजह से ऐसा डर मन के अंदर है जो मुझे मेरे लव को एंजॉय करने से रोक रहा है। यानी मैं प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ फ्यूचर के डर की वजह से। प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट ही इज विद पोर्शिया एंड पोर्शिया इज विद बेसेनियो, दे मस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ देमसेल्व्स, but because of the mistrust of future, the fear of future, they are unable to enjoy the company. And says there may as well be amity and a life in snow and